The agenda of the day is that we'll be covering yesterday's newspaper and a couple of news if we have time from Saturday. There was one news in particular that I wanted to cover, but apart from that, what I wanted to share is that if you get time in your day while traveling, if you get time, I would want you to just read or go through Indian Express Explained page whenever you have time. If you have time, I'm not asking you to read it specially, but what I found is there's a significant difference in what they actually publish in the newspaper and how they have presented things in the online version. And the online version is a lengthier version, is a much more it's a much more better explained version, as well as the fact that there are other articles as well. So because of the space constraint that they have, they keep updating the articles, and only a selected one are basically there in the physical paper. Just in case if you get time, I'm not asking you to do it specifically. This is because of the fact that I saw that there's this article on greedflation that was there yesterday, and I couldn't find it in the papers, and the explanation was really good. In fact, I'd sent that article on the group as well. So that is one thing. The other thing that some of you had asked me कि हम current affairs के notes कैसे बनाएं. I think someone in your group is using ChatGPT to make notes, and the notes that I found, I mean this kind of summary that that person had made was good. So maybe on the weekend, on Saturday, not on Sunday, on Saturday, what I'll do is I'll try to show you, if some of you have not used ChatGPT, I'll show you how to summarize notes, because ultimately that is what you want. You don't, either you can copy it from Forum.is, or you can just feed raw news to ChatGPT, and it will summarize the entire document for you. So this is how you can summarize your articles, and otherwise, over and above, what you need to do is just take down pointers, whatever you are searching. So make good use of technology. And one of the best proponents, someone who I really admire, and someone who actually changed this entire philosophy of using technology was Gaurav Agarwal, 2014 batch rank 1. So he used to use I mean internet very frequently, as well as the fact he used to use I think one of the note making apps. I'm forgetting which app he used to use, but there are these folders. OneNote is one example, but there are other as well. So you can use in this kind of format, you can use technology and make your notes. So with this, Evernote, yes, Evernote is one what he used to use. You can try Evernote, you can try OneNote, whatever works out for you. You can create folders or in your entire notebook, and then you can create chapters. So it makes your work very streamlined, and it's very easy. So have a look at Gaurav's notebooks as well. You can easily find it on his blog. He's recently written a book as well on Indian economy. I'm yet to read it, but I was just informed that he's written a book which is available in the market. Now, on that note, let us start our session. I can't still find a lot of people are not using cameras. Kanika, Himanshu, Malvika, cameras are not on, folks. If you're sleeping, what's the point of attending this session? Now, let's start our session. We'll meditate for 10 minutes, and then we'll go out for journaling. I expect you to have a proper journal, folks. Stop writing on on pages. Some of you do share your journals with me, but it should not be on pages. It should be a proper register that you have. So let's have that register also there with us. Let's start with meditation, and then we'll go for our newspapers. Let us go on to our newspapers, folks. Now, let me start with yesterday's newspaper, the Indian Express. Now, first important news: employees get time until July 11 to opt for higher pension option. Now,
you will not be able to understand this particular news now. There's in the next couple of days there is going to be an explained page on this. You can read this, but what I want you to research on is given in page number 4. Page number 4, the last two columns. What is this employees provident fund, and then you have employees pension scheme. There are two separate things. So employees provident fund and miscellaneous act did not provide for a pension, but then you have this employees pension scheme which is managed by EFPO and in 1990 in 1995. And then the pension fund basically was comprised was basically comprised of a deposit of 8.33% from the employer's contribution towards the PF corpus. And then you have both employees and the employers contribute 12% of their basic salary and all these basic stuff to the employees provident fund, and the entire contribution goes to EPF. So what this particular article is talking to you is that there are two separate things. One is called as a employees provident fund, and then the other is employees pensions scheme. So you need to understand the difference between what is the provident fund and the employees pension scheme. Basically when I'm employed in any particular activity, जैसे मैं अगर गवर्नमेंट के साथ एम्प्लॉयड हूँ या मैं स्टेट गवर्नमेंट के साथ एम्प्लॉयड हूँ, तो मेरी जो बेसिक सैलरी है, वॉट एवर आई अर्न इन टर्म्स ऑफ माई DNS अलाउंस, रिटर्न अलाउंस, उसका 12%, मैक्सिमम ऑफ 12% एम्प्लॉयर देता है एंड 12% मेरी सैलरी से भी कटता है, एंड दैट गोज ऑन टू बिकम द कॉर्पस ऑफ द प्रोविडेंट फंड. बट जो एम्प्लॉयर ने 12% दिया is split between two parts. उसका 3.67% प्रोविडेंट फंड को जाता है, 8.33% जो यहाँ पर मेंशन्ड है वो पेंशन पे जा रहा है. ठीक है. एंड उसके अलावा गवर्नमेंट ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूट्स फॉर लोअर सेक्टर एम्प्लॉइज, एंड देन दिस इज गिवन टू यू इन टर्म्स ऑफ योर पेंशन, एंड PF तो आप कभी विड्रॉ कर सकते हो. सो now the government is giving this option of after a ruling in last November. सुप्रीम कोर्ट की एक रूलिंग थी जिसमें एग्जिस्टिंग एम्प्लॉइज जो हैं उनको भी चांस दिया जा रहा था कि वो EPS का, एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड का पार्ट है बट वो पेंशन स्कीम का भी पार्ट बन जाए. तो डिपेंडिंग ऑन नंबर ऑफ थिंग्स. सो फर्स्ट थिंग दैट आई वांट यू टू रीड ऑन इज, क्योंकि यहाँ पर बिल्कुल क्लियर नहीं है जिस तरीके से उन्होंने प्रेजेंट किया हुआ है, what is an employees provident fund, what is an employees pension scheme, and what is this issue कि वो पेंशन किसकी बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं. This is one issue that you need to understand, because employees are getting time कि वो हायर पेंशन ऑप्ट कर सकते हैं, बट हायर पेंशन ऑप्ट करने के लिए देयर आर सर्टेन नॉर्म्स कि उनके पास इतना पैसा PF में होना चाहिए और उनको पुराना अपना डेटा दिखाना पड़ेगा, 10 साल पुराना, 20 साल पुराना, कि अच्छा हम तब से एम्प्लॉयड है. नाउ द एम्प्लॉयर्स आर सेइंग कि हमारे पास 8 ईयर से ज्यादा का डेटा पीछे का नहीं है, वी नीड टाइम. इसीलिए दिस टाइम हैज बीन गिवन टू एम्प्लॉइज कि अच्छा यू कैन एटलीस्ट अप्लाई इन द नेक्स्ट 15 days. You can seek this data from your employer and then apply for your higher pension scheme as well. So but there is a lot of meat to it. It is not presented well here, so I want you to do a little bit of research on it. In next couple of days we'll be discussing this particular article in detail, because this is very important from your prelims perspective, especially economics का जो prelims का portion आता है इसके लिए important है. Then the other important news is Delhi's Showpiece Deer Park to be shut down and its deers to be shifted. So what is going to happen is that Deer Park एक है, if you are aware of Safdarjung in Delhi, तो वहाँ पर South Delhi में एक Deer Park है. Now because the population of deers have exceeded in that particular park, वो unsustainable सा हो गया है. And because of that now जो ये Central Zoo Authority है, CZA, it has basically taken the recognition of mini zoos को, mini zoo का जो recognition है वो हटा रहे हैं, and उसको सिर्फ protected forest का ही recognition मिलेगा. And all these and one of the reasons why these animals have increased is because there is no predator there. तो इनको relocate करा जाएगा in the tiger reserves in Rajasthan and also in Delhi as well, for to serve as prey based augmentation. So prey based augmentation basically means they will translocate all these deers as preys for
tigers in these different reserves. So this is what is basically talking. This news is talking about, and it will be located to Rajasthan forest, and Rajasthan में अंदर 2 tiger reserves, मुकुंदरा and रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व्स. सो ये आपके टाइगर रिजर्व्स जो हैं उनको भी आपको एक बार देखना पड़ेगा. बहुत सारे टाइगर रिजर्व्स हैं इंडिया के अंदर, बट एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू टू गो थ्रू दिस बुक कॉल्ड प्रेम पटेल. उसके अंदर आपको सारे टाइगर रिजर्व्स मिल जाएंगे. एंड आपको ये भी देखना है कि टाइगर रिजर्व्स के अंदर यूजली ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई टाइगर रिजर्व उसके अंदर से कोई रिवर ना जा रही हो, बिकॉज वो 100% टाइगर्स हैव टू, एवरी एनिमल नीड्स टू ड्रिंक वाटर. सो दैट इज मैंडेटरी कि कोई ना कोई रिवर या कोई ना कोई वाटर सोर्स होगा. सो यू नीड टू मे बी डू अ लिटिल बिट ऑफ रिसर्च किसके आगे आसपास नेशनल पार्क कैसा है. जैसे राजाजी नेशनल पार्क है. राजाजी नेशनल पार्क के अंदर नैनीताल के पास और ये अल्मोड़ा वगैरह के पास वहां पर अलग से एक टाइगर रिजर्व भी है. ठीक है, तो हर टाइगर रिजर्व के आसपास नेशनल पार्क भी होना चाहिए, और वहां से कोई रिवर का सोर्स, वहां रिवर का भी कोई ना कोई रिवर जरूर जा रही होगी. सो यूजली स्टडी इट फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव एज वेल. हाँ. And this article basically also says that while transferring all the IUCN conservation जो है, International Union for Conservation of Nature, will all the protocols for conservation and translocation will be followed. Now ICUN के बारे में एक रेड बुक आती है. रीड अबाउट व्हाट इज दिस रेड बुक जो ICUN देता है. और ICUN उसके अंदर क्रिटिकली इंडेंजर्ड एनिमल्स उनकी पूरी लिस्ट देता है. So read about the red book which is published by IUCN. So ICUN, IUCN. So this is another article that I wanted to read. थोड़े से political हैं. Then come to page number 6. It's an advertorial, but in advertorial there is an important piece of information that is there which is very important for you. The contributions of MSME. Mains के लिए भी important है, prelims के लिए भी important है, economics optional के लिए भी important है. What is the contribution of MSMEs in India? ठीक है, और उसमें बहुत सारी चीजें लिखी हुई हैं. MSMEs, if you see CBI scheme to help expand MSME, तो ये जो इसके अंदर इसका जो टॉप 2 पैराग्राफ्स हैं उसमें सब कुछ लिखा हुआ है. CBI की स्कीम से पहले छोड़ दो, उससे पहले उसने सब कुछ बताया हुआ है कि हाउ MSMEs are very important and these are statistics that you need to note, folks. If you are writing an answer और इसमें आपने MSME के बारे में पूछा और आपने ये डेटा नहीं लिखा, आपको मार्क्स वैसे ही 2-3 नंबर कम हो गए. Because first you need to tell the examiner why is MSME so important for our country. Agriculture के पास सबसे ज्यादा जो employment है वो MSME generate करता है, micro, small, medium enterprises. The other thing I want you to read on the definition of MSME, the revised definition. 5 crores, 50 crores, 250 crores. ठीक है, तो ये वो क्या है, ये 5 crores क्या है, क्या कहते हैं 50 crores क्या है, 250 crores क्या है. So read about the definition. How do you define a micro enterprise, a medium enterprise, है ना, स्मॉल एंटरप्राइज, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, उसकी डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए. देन इट बेसिकली क्रिएट्स 12 करोड़ जॉब्स, और एग्रीकल्चर के पास सबसे बड़ा सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट है. देन 45% ऑफ मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन जो है इंडिया में वो MSMEs में होता है. 40% ऑफ आवर एक्सपोर्ट्स कम फ्रॉम MSMEs. 28% ऑफ आवर GDP इज कमिंग फ्रॉम MSMEs. This shows you the extent of MSMEs, how embedded they are, and not just in countries like India. China के अंदर भी 60% of their exports is coming from MSMEs. और जब हम कहते हैं कि हमें इंडस्ट्रियलाइजेशन करना है, जब हम कहते हैं कि हमें मैन्युफैक्चरिंग करनी है, the heart of the problem lies with, yes. So when we talk about MSMEs, so and when we talk about the fact कि MSMEs को हमें प्रमोट करना है, the heart of the problem lies कि हमें जितना भी मैन्युफैक्चरिंग है उसके अंदर मेजर शेयर जो है वो MSMEs को ही देना है. And we cannot be an industrialized nation without the contribution of MSMEs. और इंडिया के अंदर there's a very peculiar pattern जिसको हम बोलते हैं, you can write it down, जिसको हम बोलते हैं इंडिया के अंदर मिसिंग मिडल प्रॉब्लम. ठीक है, जब आप MSMEs के बारे में लिखोगे और ये इस पे क्वेश्चन हर 1-2 साल 3 साल में एक बार जरूर आएगा, तो when you write it like an economist. एक मेजर प्रॉब्लम इंडिया के MSMEs के साथ में ये है कि इंडिया में MSMEs में एक मिसिंग मिडिल का प्रॉब्लम है. व्हाट इज दिस मिसिंग मिडिल? हमने कहा कि माइक्रो एंटरप्राइज होती है, फिर स्मॉल होती है और मीडियम एंटरप्राइजेस होती है. अब इंडिया के अंदर ये जो माइक्रो एंटरप्राइजेस, जो सबसे छोटी एंटरप्राइजेस हैं, 95% ऑफ द एंटरप्राइजेस आर माइक्रो एंटरप्राइजेस.
तो बहुत ज्यादा छोटी छोटी फर्म्स हैं, और वो फर्म्स जो हैं वो ना स्मॉल बन पा रही है ना मीडियम बन पा रही है। तो यूजली क्या होता है, जब कोई प्लेयर मार्केट में आता है तो वो स्मॉल होता है, फिर वो धीरे माइक्रो होगा, फिर वो धीरे धीरे स्मॉल होगा, फिर वो मीडियम बनना चाहेगा। इंडिया के अंदर 95% जो एंटरप्राइजेज हैं वो माइक्रो बन के रह जाती हैं। वो माइक्रो से ना तो स्मॉल में आ पाती है ना मीडियम में आ पाती हैं। उसके मल्टीपल रीजंस हैं इंडिया के अंदर कि व्हाई इन इंडिया एमएसएमईज आर नॉट एबल टू डू वेल। इज वन इज कि वो माइक्रो तक रह जाता है। माइक्रो तक क्यों रह जाते हैं? क्योंकि टैक्स पॉलिसीज इंडिया के अंदर ऐसी हैं कि दे डू नॉट प्रमोट मूविंग फ्रॉम माइक्रो टू स्मॉल, क्योंकि बहुत सारे इंसेंटिव मिलते हैं। सो इट्स समथिंग लाइक रिजर्वेशन, कि कोई रिजर्वेशन, यस देयर इज एन आर्टिकल ऑन इंडियन इकोनॉमी टू एज वेल, दैट हमें क्या होता है, हमें रिजर्वेशन, ये इंडियन इकोनॉमी टू ऑफ ई कॉमर्स में भी मैं कराता हूँ। तो हमारे यहाँ क्या है कि हम रिजर्वेशन अगर किसी को दे दें तो उसके बाद कभी रिजर्वेशन वापस नहीं ले सकते। तो और एक जनरेशन से बाद दूसरी जनरेशन को भी रिजर्वेशन चाहिए। तो दिस इज द प्रॉब्लम हेयर एज वेल कि आपने एमएसएमईज को क्या करा हुआ है, आपने क्या कहते हैं एमएसएमईज को हम बेसिकली हमने आपने कहा कि माइक्रो एंटरप्राइजेस को बहुत सारे रिजर्वेशन मिलेगा, बहुत सारे बेनिफिट्स मिलेंगे, बट एज सुन एज आप माइक्रो से स्मॉल में आओगे तो आपको रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। तो इंसेंटिव ही नहीं हो रहा किसी फर्म के पास कि इट विल बिकम एन फ्रॉम माइक्रो टू अ स्मॉल एंटरप्राइजेस। दूसरा, माइक्रो एंटरप्राइजेस के पास जो रेगुलेशंस हैं वो बहुत मतलब टैक्स रेगुलेशंस और कंप्लायंस के रेगुलेशन, लेबर लॉज के रेगुलेशन, ये बहुत कम होते हैं। 10 लोग से अगर कम काम कर रहे हैं, और माइक्रो में यही होता है। और अगर आप माइक्रो से जैसे ही स्मॉल में आओगे आपके रेगुलेशन बढ़ जाएंगे, कंप्लायंस कॉस्ट बढ़ जाएगी, जीएसटी वीएसटी चीजें आनी शुरू हो जाएंगी। सो अगेन देयर इज नो इंसेंटिव। तो इंडिया की जो पॉलिसीज हैं, टैक्स पॉलिसीज जो हैं, इंडिया की जो जनरल आर्किटेक्चर है वो बहुत ज्यादा एवर्स है फॉर रिग्रेसिव है फॉर फर्म्स बिकमिंग फ्रॉम माइक्रो टू स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। और दूसरी चीज क्या कहते हैं, जो लार्ज एंटरप्राइजेस हैं वो कम इन नंबर है बट उनका कंट्रीब्यूशन सिग्निफिकेंट है। तो और ये जो लोअर जो माइक्रो एंटरप्राइजेस हैं, इनका क्या है, इनकी बहुत सारी फर्म्स है बट इनका जो कंट्रीब्यूशन है वो इतना नहीं है, इनकी एफिशिएंसी नहीं होती। लार्ज एंटरप्राइजेस बहुत कम है बट उनकी एफिशिएंसी बहुत ज्यादा है। और इसलिए 2 मोड्स हैं, ठीक है, अगर आप देख पा रहे हो, अगर कि एक माइक्रो एंटरप्राइजेस हैं जो बहुत ज्यादा हैं बट उनकी एफिशिएंसी बहुत कम है, और दूसरा मीडियम एंटरप्राइजेस जो कम है बट इनकी एफिशिएंसी बहुत अच्छी है। और बीच में जो गैप है उसको हम बोलते हैं मिसिंग मिडिल प्रॉब्लम। दिस इज अ टिपिकल प्रॉब्लम। यस, सॉरी, देयर वाज सम प्रॉब्लम इन माय सिस्टम। So I was talking about this missing middle problem. So read about this missing middle problem which is essential for MSMEs. ठीक है। So and उसके अलावा MSMEs को एक मेजर प्रॉब्लम जो होता है वो होता है फाइनेंस का, क्रेडिट, जिसके लिए मुद्रा स्कीम भी लेके आए। तो यू माइट नीड टू रीड अबाउट दिस मुद्रा स्कीम एज वेल, हाउ डज इट हेल्प MSMEs। देन अपार्ट फ्रॉम दैट, क्रेडिट गारंटी फंड फॉर MSMEs। तो MSMEs की नंबर ऑफ स्कीम्स है, आपको पता होनी चाहिए। तो एक मतलब हाफ अ पेज, और यू शुड इकोनॉमिक्स के अंदर अगेन इशू बेस्ड भी हम बात करेंगे। तो MSMEs एक इशू है, इसके ऊपर आपके पास हाफ अ पेज और 3/4 या 1 पेज आपके पास प्रिपेयर्ड होना चाहिए। इसमें सारे MSMEs के डेफिनेशंस, इश्यूज, what are the government schemes and what are the policies that are there, वो आपके होना चाहिए। तो इस तरीके से आप इशू बेस्ड बना सकते हो नोट ऑन MSMEs फॉर योर इकोनॉमिक्स। देन come to the editorial page now. In a sweet spot, folks, in a sweet spot is a very good article which is written with respect to that how the US government and Indian government have found good partnerships with each other, and whatever are the deal breakers in the past वो अब exist नहीं करते हैं, and both are accommodating each other, and they are working on what are the commonalities, and the pain points are not being discussed so much. तो सबसे पहले चीज जो इम्पोर्टेंट चीज है, जो आपको इंटरनल सिक्योरिटी के लिए भी इम्पोर्टेंट आएगी, ये आपको एसए में भी बहुत काम आ सकता है, और इंटरनल सिक्योरिटी एज वेल एज आईआर के अंदर। The second paragraph of this particular article is very important. In the field of international relations, which deals with external and not internal, the conduct of modern states, a central assumption is that nations are primarily guided by security. Underlying philosophical claim comes from Thomas Hobbes, whose book Leviathan
written during the English Civil War, made the argument that without public order and security, only which the government could provide, lives would be solitary, poor, nasty, brutish and short. Very very important article which talks about, इसी book का भी आप नाम लोगे, author का भी नाम लोगे और लिखोगे कि क्यों internal security, law and order, justice is the main feature, core feature of a particular state. अगर ये भी स्टेट नहीं कर पा रहा, जैसे यूपी के केस में था, यूपी के केस में लोग, पीपल आर वांटिंग वन थिंग ओनली, सबसे पहले कि स्टेट को क्या प्रोवाइड करना है, लॉ एंड ऑर्डर प्रोवाइड करना है, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर ऐसी चीज है which cannot be dwelled into any particular authority. Any particular state gets its legitimacy by the fact कि वो लॉ एंड ऑर्डर को कैसे इंप्लीमेंट कर पा रहा है. तो इसीलिए वो कहता है कि दिस इज, और अगर ये बात हो रहा है कि इंटरनल सिक्योरिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बट एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम एक्सटर्नल सिक्योरिटी के, एक्सटर्नल उसके अंदर भी हर स्टेट सिक्योर होना चाहता है अपने आप को. एवरी स्टेट वांट्स द फैक्ट कि मैं इकोनॉमिकली, टेक्नोलॉजिकली एंड इन टर्म्स ऑफ डिफेंस एज वेल, हर स्ट्रेटेजिकली भी मैं हर तरीके से सिक्योर हो पाऊँ. तो व्हाट द ऑथर इज बेसिकली सेइंग दैट ही इज एक्सटेंडिंग द आर्ग्यूमेंट ऑफ this security from internal security to even external security. And why is it relevant to India US relationship? Because that is now being threatened, that external, especially with respect to India, that external threat or जो security threat is being challenged, और UN के पास कोई sovereignty नहीं है और वो इतनी powerful नहीं है. So what the countries have done is they have started making these associations to combat this kind of a threat. Or then it comes to the idea that initially West was seeing Xi Jinping and China's rise, कि अच्छा maybe with introduction of markets, China will move towards a Western liberal society. But in fact under Xi Jinping it has become even revisionist. It has moved inwards, और भी ज़्यादा authoritarian होना शुरू हो गया है. And the fact that it has now partnered with China, with Russia, the fact that उसकी economy second largest बढ़ गई है, the fact that it has become technologically very independent, defense, in terms of defense it's becoming a major power, in terms of space it's becoming a major power, with respect to all of these facts, and the fact that it can any day attack Taiwan, which is a much more strategic country for US as compared to Ukraine. तो इन सब फैक्टर्स को लेके इवन द यूएस इज थ्रेटन्ड इन टर्म्स ऑफ इट्स जियोपॉलिटिक्स. इंडिया के तो ऑलरेडी बॉर्डर्स पे है और इंडिया के थ्रेटन हो ही रहा है ऑलरेडी. सो बिकॉज ऑफ दैट ये कॉमन फैक्टर आ गया इंडिया और यूएस रिलेशनशिप के बीच में, जिसकी वजह से व्हाट इट सेज इज दैट व्हाट शी हैज प्रोड्यूस्ड व्हाट डेंग कुड नॉट. डेंग जाओपिंग in 1978 was the architect of Chinese Revolution. ये आपको पता होना चाहिए कि चाइनीज रेवोल्यूशन जो मेन आया है, जो चाइनीज इकोनॉमी में जो मार्केटाइजेशन हुआ है, वो डेंग जाओपिंग ने किया था 1978 में. ही स्टार्टेड विद समथिंग कॉल्ड एज हाउस होल्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी सिस्टम, एंड 1984-1985 के अंदर इन्होंने ये सेम सिस्टम एमएसएमईज में भी इंपोर्ट किया था, और उन्होंने अपनी स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस को रिफॉर्म करना शुरू किया. एंड बाय द 1990s वो कंप्लीटली प्रोग्रेस हो चुकी थी, अपने आप स्टेट ओन्ड एंटरप्राइज भी बहुत अच्छा करने लगी थी, और आपका एग्रीकल्चरल सेक्टर भी बहुत अच्छा हो चुका था. सो लिटिल बिट ऑफ चाइनीज हिस्ट्री इज वेरी इंपॉर्टेंट कि चाइना ने ऐसा क्या किया जो इंडिया ने नहीं किया. चाइना ने पहले उसका अपना एग्रेरियन सेक्टर को ठीक किया. 7-8 साल में पॉवर्टी अपनी 33% से 10% पे ले आया, और एग्रेरियन जो जीडीपी है वो 8-9% पे लेके गया था चाइना. फिर उसके बाद वहां पर जब एक्स्ट्रा रिसोर्सेज फार्मर्स के पास आ गए, दैट रिसोर्सेज वर यूज्ड टू बेसिकली इन्वेस्ट, और जब फार्मर अमीर हो जाएगा तो वो डिमांड करेगा प्रोडक्ट्स. और अब उन्होंने इंडस्ट्रियलाइजेशन पे फोकस करना शुरू किया, स्पेशली एमएसएमईज पे फोकस करना शुरू किया. एंड दैट लेड टू कि अच्छा, बिकॉज दीज फार्मर्स हैव मनी, द एग्रेरियन सेक्टर हैज मनी, दे कैन डिमांड ऑल दीज इंडस्ट्रियल गुड्स एज वेल. दैट लेड टू द इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, और उसके बाद वो 10-20 सालों का इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन चला है. सो आई एम गिविंग यू अ हिस्ट्री ऑफ हाउ चाइना हैज एक्चुअली वर्क. सो डेंग जाओपिंग जो है वो इंडिया और चाइना को साथ में नहीं ला पाया. But because of the policies of Xi Jinping, India and US have become very close. And apart from that, economics और democracy के अंदर जो उनका pillars हैं, economics के केस में although India is not as big as China, but क्योंकि security threat है of investment in China, therefore all the investors
major investors like Micron, like Meta, like Tesla, all of them are thinking of investing in India. And the other thing is, एक major deal breaker कई बार आ जाता है democracy का. तो the author says that India is not a liberal democracy, but history shows that अमेरिका ने अलग अलग कंट्रीज के साथ भी अपने अपने relationships रखे हैं, despite the fact कि वो liberal democracy चाहे ना हो, even autocratic countries like Pakistan. So that is not going to be a deal breaker. At least India is a electoral democracy, if not a liberal democracy. Okay, so this is an important article that you need to know. Then ओबामा कोट अनकोट, दिस बेसिकली एक आर्टिकल आप पढ़ सकते हो इसके ऊपर. ये बेसिकली कह रहा है कि ओबामा ने अभी रिसेंटली क्या हुआ, वहाँ जो स्टेट विजिट था प्राइम मिनिस्टर का, उसमें बोल दिया कि इंडिया शुड आल्सो टॉक अबाउट, बाइडेन शुड आल्सो टॉक अबाउट द माइनॉरिटी राइट्स इन इंडिया. तो अब जैसे ओबामा ने माइनॉरिटी राइट्स के लिए बोला, इंस्टेड ऑफ इग्नोरिंग दिस एंड लेटिंग इट पास, अभी उसको क्या कहते हैं, ग्रैंड स्टैंड मत करो, उसको काउंटर मत करो, because he's a very well known statesman, and he's also partnered Biden in his presidential pursuit. तो इसलिए it's not wise to basically counter him. बट इमीडिएटली क्या होता है कि जैसी कोई ऐसी स्टेटमेंट आती है, इंडिया के जो पूरा डिफेंस इंडस्ट्री है, ये जो पूरा पीआर मीडिया है, ये एकदम से अगेंस्ट आना शुरू, डिफेंड करना शुरू कर देता है. जैसे इसने किया आपके आई थिंक असम का चीफ मिनिस्टर ने, देन ऐसे ही बीजेपी के वाइस प्रेसिडेंट ने किया, ऐसे ही निर्मला सीतारमन ने किया. दिस डजंट ओवर वेल इन इंटरनेशनल रिलेशन कि यू बिकम रिएक्शनिस्ट बन जाते हो, अब एकदम से रिएक्शन देना शुरू कर देते हो. एट टाइम्स यू शुड नॉट do any grandstanding, and at times you should just listen to what the other person is saying. Then the next two articles, Cairo Trieste और दूसरा फ्रेंडशिप इन मेकिंग, दोनों के दोनों जो हैं पीएम की विजिट ऑन कायरो के साथ और इंडिया इजिप्ट रिलेशनशिप के पास है. अब इंडिया इजिप्ट रिलेशनशिप हैज बीन एलिवेटेड टू स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप. नॉट जस्ट दैट, क्या कहते हैं, जो प्रेसिडेंट एलसीसी है, he is also partnered and given importance to India unit in his government, जिसमें seven cabinet ministers होंगे. And apart from that, तो basically India को लेके एक separate unit बनाया गया है to manage the relationships between India and Egypt. And apart from that, Order of Nile, highest honor जो है वो has been given to this. Then history है, little bit of history, that India and Egypt have had very close relationships, especially दोनों के दोनों were part of the architects of non-allied movement. But हमारा जो relationship है बहुत ज़्यादा ups and downs के साथ रहा है till 1990s, और काफ़ी obscure हो गया था after some point of time, but now is the time to revive it. और इसके जो pillars हैं वो basically हैं politics, defense and security, economic engagement, academic and scientific exchanges, people to people. इसके अंदर दो जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो एक इकोनॉमिक अरेंजमेंट में एससी जोन है, विच इज बेसिकली स्विस कैनाल इकोनॉमिक जोन, जहां पर इंडिया की कंपनीज को बेसिकली बोला जा रहा है कि आप आके यहाँ पर इन्वेस्ट करो एंड आपको एक्सेस मिलेगा फॉरेन की मार्केट्स का. एंड यू नीड टू ऑल्सो सी दी इजिप्ट का मैप देखना है आपको, इजिप्ट के आसपास की साथ कंट्रीज देखनी है, एंड साथ में ये देखना है कि स्विस कैनाल की जो है वो कहाँ से जा रहा है. ठीक है, तो वो पूरा फिजिकल मैप भी देखना और आपको पॉलिटिकल मैप भी देखना है यहाँ पर ना. अब जब आप ये मैप देखोगे तो आपको स्विस कैनाल दिखाई देगा, और स्विस कैनाल इज वन ऑफ द मेन आर्टरीज दैट कनेक्ट्स द इंडियन ओशन टू द मेडिटेरेनियन सी एंड देन टू द एंटायर नदर्न हेमिस्फीयर. तो उसके ऊपर आपको एक्सेस दिया जाएगा अगर इंडियन लोग जो हैं अगर यहाँ पर इस एरिया में अंदर इन्वेस्ट करेंगे. तो उसके ऊपर एक इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट. और दूसरा डिफेंस है, दैट इंडिया हैज ऑफर्ड इट्स ओन डिफेंस हेलीकॉप्टर्स और ये जो LCA हमने बनाया, लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, टू इजिप्ट एज वेल. तो डिफेंस रिलेशनशिप्स आर ऑल्सो इम्पोर्टेंट है. और यही सारी चीजें जो हैं वो नेक्स्ट उसके अंदर आर्टिकल के अंदर भी दे रखी हैं, ऑल ऑफ दिस. एंड इजिप्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज एक इसके अंदर इट्स अ मुस्लिम कंट्री, but it has a very huge weight in the Arab world. So it matters, its views matter in the Arab world, so it is always better to have them
I mean in our good books as well. और स्पेशली ये जो है इट्स ऑल्सो द हेडक्वार्टर्स ऑफ लीग ऑफ अरब स्टेट्स. तो ये इंपॉर्टेंट है. देन इस आर्टिकल का लास्ट पैराग्राफ पढ़ना, दैट सीम्स टू बी इंपॉर्टेंट पैराग्राफ. देन नेक्स्ट आर्टिकल, pettiness of power. It's an important article. Yeah, it's an important article for ethics. कि कई बार क्या होता है, ये जो रेजिडेंशियल वेलफेयर एसोसिएशन है, और इसमें ये जो बड़ा अच्छा कोटेशन है, यू कैन राइट डाउन दिस कोटेशन इन योर कोड बुक्स. लॉर्ड एक्टन वाज राइट व्हेन ही सेड दैट पावर करप्ट्स. ही फॉरगॉट टू एक्ट दैट पावर करप्ट्स मोर एब्सोल्युटली एट द लोअर लेवल्स. ठीक है, पेटी पावर करप्ट्स मोर एब्सोल्युटली. तो और ये पेटी पावर क्या है, ये जो रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन है, इनके अंदर ये कुछ भी एक तो रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन में आपको कोई नहीं है, इट्स नॉट एन इलेक्टेड बॉडी. जो लोग रेजिडेंट्स हैं वो सारे मिलके एसोसिएशन बना लेते हैं और आपस में एक वोटिंग कर लेते हैं और कोई प्रेसिडेंट बना लेते हैं. नाउ द फैक्ट इज कि ये जो बॉडीज हैं कैसे भी एक्ट बनाए, जैसे इस केस में है बेंगलुरु में उन्होंने कहा कि मेड जो है वो कॉमन एरिया यूज करेंगे. ठीक है, ऐसे ही नोएडा के अंदर कुछ आया था कि आप शॉर्ट्स में नहीं घूमोगे. तो अब these are not democratically elected organizations and they are work in whims and fancies, और at times ये class bias, caste bias को smack करता है. तो this is a good example for negative biases that exist in our country, especially with respect to the lower section. So you can take this example as a case study there. Then a very important article, transforming the bank, which basically addresses multilateral development banks and that multilateral जो development banks है, पहली बात तो आपको ये पूरे के पूरे banks के बारे में पता होना चाहिए. हमारा वर्ल्ड बैंक ग्रुप है जिसके अंदर दो पार्ट्स हैं. वर्ल्ड बैंक ग्रुप के अंदर you have this IMF and वर्ल्ड बैंक. बट अपार्ट फ्रॉम दैट ये जो दो मेन ऑर्गेनाइजेशन हैं, उसके अलावा you have वर्ल्ड बैंक ग्रुप के अंदर IBRD, देन उसके बाद IDA, then you have IFC, MIGA and International Center for Settlement of Disputes, Investment Disputes. ये सारे के सारे मिलते हैं और they become the part of World Bank Group. और यहाँ पर लिखा भी हुआ है सेकंड पैराग्राफ में इन सब की डिटेल्स. I want you to note them down कि what is the work of IBRD, International Bank for Reconstruction and Development. ये जो है ये लोअर मिडिल इनकम कंट्रीज को और मिडिल इनकम कंट्रीज को लोन देता है, क्या कहते हैं, और मिडिल इनकम कंट्रीज को लोन देते हैं. एंड देन इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन जो है वो लीस्ट डेवलप कंट्रीज को लोन देता है एट वेरी कंसेशनल रेट. और मीगा क्या करता है, मीगा जो है वो क्या कहते हैं, IFC जो है वो प्राइवेट सेक्टर को लोन देता है, और मीगा जो है वो इनकरेज करता है प्राइवेट कंपनीज टू इन्वेस्ट इन फॉरेन कंट्रीज एज वेल एज, फॉरेन कंट्रीज को इन्वेस्ट कर रहा है. और फिर उसके बाद इंटरनेशनल डिस्प्यूट सेटलमेंट, तो हमें पता है कि वो इंटरनेशनल डिस्प्यूट सेटलमेंट कर रहा है ऑफ इन्वेस्टमेंट. तो ये आपको पता होने चाहिए. तो ये आपके हो गए मल्टीलेटरल. उसके अलावा यू हैव रीजनल डेवलपमेंट बैंक्स एज वेल. फॉर एग्जांपल न्यू डेवलपमेंट बैंक जो ब्रिक्स वालों का है, या ये एशियन डेवलपमेंट बैंक हो गया, तो ये दूसरा बैंक हो गया. तो ऐसे बहुत सारे जो है रीजनल डेवलपमेंट बैंक्स भी हैं. नाउ टिपिकली जो ये जो जितने डेवलपमेंट बैंक्स थे, इनका जो दो अप्रोचेस थी, वो थी एक आपको पॉवर्टी कम करना है, और दूसरा इनका होता था कि शेयर्ड प्रॉस्पेरिटी होनी चाहिए. नाउ अब these are no longer able to address the new challenges. तो what N.K. Singh has written is कि जो नई challenges आई हैं 21st सेंचुरी को, उनको ये डेवलपमेंट बैंक्स एड्रेस कर ही नहीं पा रहा. और these are issues related to public goods, climate change, पैंडमिक्स, इन सब के चीज़ों के ऊपर we are not able to basically क्या कहते हैं, these development banks are not able to provide resources. ये जो बैंक्स हैं, ये टोटल एनुअल जो इनका लेंडिंग रहता है वो 120-130 बिलियन डॉलर्स के अराउंड रहता है. बट वी ऑलरेडी नो दैट बाय 2030 कंट्रीज विल नीड अराउंड $2 trillion फॉर क्लाइमेट चेंज एंड अदर स्टफ. तो वेयर इज दैट मनी गोइंग टू कम फ्रॉम, दैट इज अ मेजर कंसर्न. और वो ये पूरा आर्टिकल बता रहा है कि इन पर्टिकुलर बैंक्स को अपना कैपिटल का बेस जो है वो बढ़ाना पड़ेगा किसी तरीके से, सो दैट ये लेंडिंग ज्यादा कर पाए. तो इनको रिकैपिटलाइज करना पड़ेगा. ठीक है, रिकैपिटलाइज का बेसिकली मतलब ये होता है कि जो ओनर्स हैं, जो लोग कॉन्ट्रीब्यूटर्स हैं, उनको अपना कॉन्ट्रीब्यूशन बढ़ाना पड़ेगा. और जब इन मल्टीलेटरल बैंक्स की बैलेंस शीट जब बढ़ेगी, तो बैलेंस शीट बढ़ने के बाद ये जो इनकी लेंडिंग कैपेसिटी है वो और बढ़ जाएगी.
तो अगर आपके पास 100 रुपए हैं तो 100 रुपए के बेसिस पे आप 1000 रुपए का लोन दे सकते हो। तो आप कह रहे हो कि वो 100 रुपए की बजाय इसको 500 रुपए करो, सो दैट आप उस 500 जो 1000 रुपए का लोन दे रहे हो उसकी जगह 5000 रुपए का लोन दे पाओ। तो दिस इज कॉल्ड एज रिकैपिटलाइजेशन। तो ये रिकैपिटलाइजेशन के बारे में बात कर रहा है, दैट recapitalization of these multilateral development institutions is required, and you also need participation from the private sector. Private sector को भी invest करना पड़ेगा, तभी जाके ये funds की requirement पूरी हो पाएगी। So read this article. With this context, you will be able to read what this article is saying. It's a very important article, especially because I am expecting a question in this year's mains on this particular topic, multilateral development banks and उसका impact. Then page number 14, regulatory body OTT platform tells OTT platform to take down content. Now OTT platform से हमारा वो मतलब नहीं है, but हमारा मतलब ये है कि this is the first time that has happened, एक digital publisher content grievances council. This is a self regulatory body of OTT, आपको पता होना चाहिए पहली बात तो। Digital publisher content grievances council, it is headed by a Supreme Court judge and it has objected to one of the platforms जो basically nudity को promote कर रहा था और illicit content जो है वो probably डाल रहा था on the internet. So उसको करा है। तो you have to what I wanted to you to read was this particular entity council, और again apart from that you have IT intermediary guidelines and digital media ethics code rules. तो वो भी रूल्स हैं, ये आपके रूल्स 2023 में भी अमेंड हुए हैं। तो आईटी रूल्स जो हैं वो भी अपडेट होते रहते हैं। देयर इज एन इंपॉर्टेंट आर्टिकल ऑन दिस इन द हिंदू, आई विल आस्क यू टू रीड दैट एज वेल। सो दिस इज वन आर्टिकल दैट यू नीड टू रीड। देन कम टू एक्सप्लेन पेज। एक्सप्लेन पेज पे डिलिमिटेशन एक्सरसाइज, आई वांट यू टू गो थ्रू द पॉलिटी बुक, अंडरस्टैंड व्हाट इज दिस डिलिमिटेशन एक्सरसाइज। और ये डिलिमिटेशन एक्सरसाइज जो पार्लियामेंट है उसके केस में 2026 तक फ्रीज्ड है। 2026 के बाद जो है हम देखेंगे कि डिलिमिटेशन कैसे करनी है टू दी लोकसभा कितनी सीट्स हैं, हर स्टेट को कितनी सीट जाएगी वो फिक्स्ड है आज के डेट में। फॉर एग्जांपल यूपी की 80 सीट्स हैं, यहाँ पर असम के लिखा हुआ है कि असम की 22 सीट्स हैं, 22 हैं जितनी भी हैं उतनी सीट्स हैं, तो 14 सीट्स, तो 14 सीट्स जो है वो फिक्स्ड है। अब डिलिमिटेशन एक्सरसाइज जब नेशनल लेवल पे होगी तो वो 2021 के सेंसस पे होगी, पर जब सेंसस आएगा तभी होगा। बट व्हाट द आर्टिकल सेज इज दैट 2011 का डेटा था, सेंसस का डेटा, उसके बेसिस पे पूरी कंट्री के अंदर डिलिमिटेशन एक्सरसाइज स्टेट्स के अंदर हो चुका था। ठीक है, तो डिलिमिटेशन का बेसिकली मतलब होता है हर जो डिस्ट्रिक्ट है या हर जो एरिया है वो ऑलमोस्ट इक्वल नंबर ऑफ लोगों को रिप्रेजेंट कर रहा है इन दी कंट्री। फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास एक पर्टिकुलर स्टेट है जिसके अंदर मेरे पास से 1 मिलियन लोग रहते हैं, 10 लाख लोग रहते हैं, तो मैं अगर मुझे उनकी 10 कॉन्स्टिट्यूएंसी बनानी है तो मैं इस तरीके से कोशिश करूंगा कि हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में 1-1 लाख लोग हों, कि रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी हो ना, यही तो हम चाहते हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि एक डिस्ट्रिक्ट ऐसा है जिसमें 5 लाख लोग रह रहे हैं और 4 डिस्ट्रिक्ट ऐसा है जिसमें 1-1 लाख लोग रह रहे हैं। सो वी वांट टू इक्वली डिस्ट्रीब्यूट दिस पर्टिकुलर पॉपुलेशन, और जब ये 1 मिलियन से पॉपुलेशन 2 मिलियन हो जाएगी तो हम फिर से रीडिस्ट्रीब्यूट करेंगे अपनी इन सीट्स को। कि कैसे, इस प्रोसेस को बोलते हैं डीलिमिटेशन। बेस्ड ऑन योर पॉपुलेशन डेटा आप देखते हो कितनी सीट्स बढ़ेंगी, किसको कितनी सीट जाएंगी, और उसमें ये भी देखते हो SC ST को कितनी सीट जाएंगी, क्योंकि वहां पर रिजर्वेशन भी होता है। सो दिस डिलिमिटेशन एक्सरसाइज इज हैपनिंग इन असम, और उसमें थोड़ी सी पॉलिटिक्स भी हो रही है कि कई सीट्स ऐसी हैं जो जहां पर प्रॉब्ली बीजेपी नहीं आती, बट वहां पर आप डिलिमिटेशन करके अब उनका जो माइनॉरिटी स्टेटस है उस पर्टिकुलर क्या कहते हैं उस पर्टिकुलर सीट का, वो ही आप चेंज कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल आप मानो कि एक सीट है जिसके अंदर मेजरली मुस्लिम्स वोट कर रहे हैं, अब आपने उस एरिया को एक्सपैंड कर दिया सो दैट मुस्लिम्स जो है उनकी जो मेजोरिटी है वो कम होनी शुरू हो जाए, उसमें आपने हिंदूज वाले एरिया भी ऐड कर दिया, तो अपने आप क्या होगा, उस सीट पे बीजेपी का आना ज्यादा पॉसिबल हो जाएगा। दिस इज व्हाट दिस आर्टिकल इज टॉकिंग अबाउट। बट हमें पॉलिटिक्स से कोई मतलब नहीं है। आई वांट यू टू नो अबाउट व्हाट इज दिस डिलिमिटेशन एक्सरसाइज एट नेशनल लेवल एंड ऑल्सो एट सेंट्रल लेवल। देन इंडिगो एंड टाटा डुओपली, यू कैन जस्ट रीड दिस आर्टिकल। बेसिकली हमें डुओपली पता होना चाहिए कि डुओपली क्या और ये एयरलाइन इंडस्ट्री में क्या चल रहा है, क्योंकि बिकॉज ऑफ दिस फैक्ट कि बाकी सारी इंडस्ट्रीज जो है या तो वो बहुत न्यू आ रही है, जैसे एयर अलास्का है, या फिर स्पाइस जेट जैसी हैं जो जिनमें फाइनेंशियल ट्रबल बहुत ज़्यादा चल रहा है,
तो ऑल ऑफ दिस बेसिकली शोज कि 80%, 89-90% जो आपके पास कंज्यूमर्स हैं वो इन्हीं के पीछे है. उसके इम्पैक्ट जो हो सकता है इकोनॉमी पे क्या हो सकता है वो बता रहा है. देन रानी दुर्गावती गौरव यात्रा एमपी, हु वाज दिस गॉन्ड क्वीन, या पढ़ सकते हो. रानी दुर्गावती कौन थी. और क्या कहते हैं, इसमें चंडेला डायनेस्टी से थी. एंड चंडेला डायनेस्टी इज वेरी वेल नोन फॉर इट्स टेम्पल्स. ठीक है, जो खजुराहो के टेम्पल्स एमपी में वो क्या कहते हैं चंडेला डायनेस्टी ने बनवाए थे. एंड देन मुगल अटैक के अंदर और उनका रोल क्या था, तो यू कैन रीड अबाउट दिस पर्टिकुलर आर्टिकल. मेथीज वाला हम कई बार पढ़ चुके हैं इसलिए यू डोंट रिक्वायर इट. एक आर्टिकल और पढ़ सकते हो, कॉन्फिडेंट ऑफ हैविंग अ वायबल प्रपोजल इन 40 nm फैब्रिकेशन बेसिकली इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स. ये आप एक आर्टिकल पढ़ सकते हो. एंड कैपिटल इन्वेस्टमेंट स्कीम फॉर स्टेट्स पढ़ सकते हो, बट इतना भी बहुत ज्यादा कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं है. देन वर्ल्ड में आ जाओ. वर्ल्ड में वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज, डॉक्टर गुड इनफ विन द विनर ऑफ नोबेल प्राइज फॉर लिथियम आयन बैटरी डाइज आर 100. This was the person who won the Nobel Prize at the he's the oldest person to win the Nobel Prize at the age of 97. एंड इनका जो रेवोल्यूशन है इनका जो कंट्रीब्यूशन है लिथियम आयन बैटरी, जो हम बैटरीज यूज करते हैं हर चीज में, लैपटॉप में, मोबाइल के अंदर, किसी भी डिवाइस के अंदर, उसका जो ग्राउंड वर्क है वो दिस पर्सन हैड डन. So that is why this news has become important. I'll just quickly cover a couple of topics from the Hindu folks. 2-3 आर्टिकल हिंदू के थे जो इम्पोर्टेंट थे. वो पेंशन वाला आर्टिकल तो यहाँ पर भी है. Now, यहाँ पर एक बहुत अच्छा आर्टिकल है, लेइंग फाउंडेशन फॉर फ्यूचर रेडी डिजिटल इंडिया. इसके अंदर काफी सारा मीट दे रखा है डेटा के अंदर कि इंडिया के अंदर जो नया एक्ट लेके आ रहे हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट को जो रिप्लेस करके हम जो डिजिटल इंडिया बिल लेके आ रहे हैं, उसके अंदर इन्होंने कंपनीज को कैटेगराइजेशन में डाला है, ई कॉमर्स प्लेयर्स, सोशल मीडिया कंपनीज, सर्च इंजन्स, और उनको अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी भी दी है. अपार्ट फ्रॉम दैट जो आज का करंट एक्ट है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है. इसमें जो सेकंड चीज देखे, व्हाई द प्रेजेंट रेजिम इज अनटेनेबल, ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है जिसके अंदर हमने आज की डेट में सोशल मीडिया इंटरमीडिएटरीज बनाई है, वेरी लार्ज सोशल मीडिया इंटरमीडिएटरीज, एंड रिसेंटली हमने ऑनलाइन गेमिंग इंटरमीडिएटरीज ऐड करी हैं. बट इसके अलावा भी बहुत सारी मिनी वर्जन होते हैं जिनको एड्रेस नहीं किया हुआ. और इसमें होता है कि 72 आवर्स में अगर किसी को भी बोला गया टेक डाउन करने के लिए तो उसको वो टेक डाउन करना पड़ता है. ठीक है, तो उसके बाद वो बता रहा है कि अभी जो आपने ये जो कैटेगराइजेशन कर रखा है, इसके अंदर कई कैटेगरीज ऐसी हैं जिनको बिना बात कंप्लायंस करना पड़ रहा है, बट उनका इतना पब्लिक में फेक इन्फॉर्मेशन में कोई रोल नहीं है. इसलिए आपको ग्रेडेड एक वो बनाना चाहिए. जैसे फॉर एग्जांपल ऑस्ट्रेलिया ने 8 ग्रेड बनाए हुए हैं अपने कंटेंट के लिए, और डिपेंडिंग ऑन कि वो कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसको उतना ज्यादा रेगुलेशन करना पड़ेगा. तो वो ये आर्टिकल बता रहा है कि आपके पास एक ग्रेडेड वो होना चाहिए, इन्फॉर्मेशन बेस होना चाहिए कि किसको कम रिक्वायरमेंट है, किसको ज्यादा रिक्वायरमेंट है, किसको बहुत क्रिटिकल है. जैसे समथिंग लाइक यूट्यूब, जहां पर इजीली पोर्नोग्राफी जा सकती है. चाइल्ड पोर्नोग्राफी को लेके बड़ा इशू है विद रिस्पेक्ट टू यूट्यूब और ये सारे ये सोशल मीडिया, स्पेशली टेलीग्राम को लेके. तो जहां पर ये सारी चीजें आ सकती हैं, जहां पर बुलिंग हो सकती है, जहां पर जहां पर भी ये सारे इश्यूज आएंगे वहां पर उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा बन जाती है. स्पेशली अगर आप देखो यूट्यूब में, मैं हर लेक्चर यूट्यूब पे डालता हूँ तो यूट्यूब स्पेशली मुझसे पूछता है इस चीज के ऊपर कि व्हाट इज योर कंटेंट, सेल्फ रेगुलेशन के लिए. और फिर उसके बाद उनके एल्गोरिथम्स चेक करते हैं कि अच्छा ये कंटेंट ठीक है या नहीं है, और उसके बाद दे हैव दिस वैल्यू. सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट आपके पास एक ग्रेडेड मैकेनिज्म होना चाहिए for all these online companies, and you can't just simply put them as social media intermediaries, significant social media intermediaries. आपके पास अलग अलग क्लासिफिकेशन होना चाहिए. This is the article, it's an important article, you can read this. and उसके अलावा इंडिया एजेंट ऑलरेडी पढ़ चुके हो. अगर आपको वैगनर का म्यूटनी के बारे में पढ़ना है तो टेक्स्ट एंड कंटेक्स्ट में दे रखा है, बट उसका कुछ बहुत ज्यादा रेलेवेंस नहीं है. मतलब पढ़ने में मजा आएगा बट ज्यादा रेलेवेंस नहीं है, एक्सेप्ट फॉर द फैक्ट दैट यू नीड टू नाउ नोट कि ऑल इज नॉट वेल इन रशिया. दिस वॉर इज नॉट अ वेरी पॉपुलर वॉर विद इन रशिया, जिसकी वजह से ये डिस्टेबलाइज हो रहा है पूरा का पूरा रीजन. तो दैट इज अ मेजर प्रॉब्लमैटिक इशू जो आपको पता होना चाहिए. शायद से इसके अंदर
एक आप पढ़ सकते हो श्रीलंका टू रीस्ट्रक्चर इट्स डोमेस्टिक डेट समिट चैलेंजेस, अगर आपको ये पढ़ना है तो यू कैन रीड दिस पर्टिकुलर आर्टिकल. दैट्स इट folks, that's it from my side. There is one more article that I want to share, but I think I'll give a little rest to my throat. I will share that article with you tomorrow first thing of Saturday का एक article है, which is an important article that I wanted to teach you. So I'll cover that, but then I will also cover today's newspaper tomorrow. ठीक है? So with this we can wrap up our class. And वो जो भी आपने डेली अपने रूटीन्स लिखे हैं, मेक श्योर दैट यू फॉलो देम. एंड प्लीज अ लॉट ऑफ यू आर नॉट फिलिंग अप द गूगल फॉर्म. वी आर गोइंग टू चेंज द गूगल फॉर्म फॉर्मेट ऑल्सो फ्रॉम जुलाई, बट प्लीज फिल अप द गूगल फॉर्म सो दैट मुझे एक बार, जब मैं हफ्ते में एक बार खोलूँ तो मुझे दिख जाए कि कौन सा कितना लोग अचीव कर पा रहे हो. एटलीस्ट आई कैन गिव पीपल कॉल कि अच्छा क्यों नहीं अचीव कर पा रहे हो अपने टारगेट्स. सो दैट्स एन इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट फॉर ट्रैकिंग योर मेट्रिक्स. ठीक है? So be accountable to us, be accountable to yourself as well. So I'll meet you tomorrow folks at same time, 5 o'clock. Thank you very much.